good morning to all of you and welcome back. We were in the middle of discussing vectors. I think कई बार ना मिक्सअप हो जाता है 1 और 2 के बीच में कि कुछ वहां करा है कुछ यहाँ करा है. सो जैसे कल पॉइंट आउट कर रहे थे कि शायद मैंने वेक्टर एडिशन का शायद प्रूफ नहीं दिया. उसे वो अलग बात है कि बाद में मैंने करा तो दिया था उस टाइम. It can happen sometimes. Fine. Chalo, so like we were in the middle of discussing vectors. So we have done addition and subtraction. Is that so? Have we started dot product? No, sir. Okay. Have we done subtraction? Yes, sir. We had vectors. Okay, fine. Chalo, ठीक. Let's do one thing. Let's do 1 or 2 questions based on subtraction, addition, and then we will move on. Fine. जैसे एक देखना सिचुएशन बनता है and that is a boat crossing a river. ठीक है ना? That is totally based on vector addition. So today we are going to take up the example of boat river crossing. Now let's understand the basics of it. If you look at a river, let's say, okay, river has its own velocity. So let's call it as suppose VR. So VR is basically the velocity of the river flow. Fine. And let's say there's a boat like this. So there's a boat. Now this is basically the top view. So what we are seeing is the top view. So this is the river flowing. There's a boat. And let's say the boat is inclined at an angle, some theta. And let's say the boat has a velocity of VB in still water. So VB is basically velocity of boat in still water. ठीक है? यानी जिसमें पानी रुका हुआ है उसमें जो velocity of the boat है वो suppose given है VB. ठीक है? Now let us say that is at an angle theta. अच्छा अगर मान लो रिवर नहीं होता, अगर लेक होता लेट्स, तो क्या होता? इसका एक पार्ट इधर होता और एक पार्ट इधर होता, है ना? This we call as components, है ना? तो क्या क्या components होते हैं? ये हो जाता VP cos theta और ये हो जाता VB sin theta. Let's say the breadth of the river is suppose P. अब देखो ये जो हमने components कर लिए इसका सबसे बड़ा benefit क्या है? And now we can study X and Y independent. So therefore the purpose is that now we can study X and Y independent. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो VB sin theta है, that will be responsible for crossing the river. So VB, that is a Y component, that means VB sin theta will be responsible for river crossing. And this component VB cos theta will be responsible for forward movement. अच्छा, for a moment let's take a lake. Lake में क्या होगा? VR 0 हो गया, है ना? Lake का मतलब क्या होता है कि इसका horizontal movement है ही नहीं, तो ये हो गया 0. In that case the only horizontal movement is what? VB cos theta. यानी फाइनली ये जो बोट यहाँ पे पहुंचेंगे सर, हाँ जी जिन्होंने कर रखा है उनके लिए कोई साइड में क्वेश्चन दे दो कोई भी. हाँ, मैं बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है ना? यानी क्या होगा ना, ये यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना? और मतलब ड्यू टू दिस VB sin theta it will reach the other end, and due to VB cos theta it is going to give a forward movement. यानी फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VB cos theta. और रिवर क्रॉसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VB sin theta. ठीक है? ओके. इसका मतलब जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा वो क्या हो जाएगा? B by VB sin theta. ठीक है? तो B by VB sin theta, sorry, VB sin theta will be the time of crossing. और इतने ही देर में ये आगे भी जाएंगे. अच्छा, अगर लेक होता, इन दैट केस इसका रोल तो है नहीं VR का, और ये लेक तो है नहीं,
ये रिवर है, इसका मतलब क्या है कि इसके एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगा, तो फॉरवर्ड मूवमेंट बोट के वजह से तो वी भी cos थीटा है, लेकिन रिवर उसको एक्स्ट्रा पुश देंगे, यानी एक्स के अलोंग क्या हो रहा है, वी बी cos थीटा प्लस वी आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्ड यानी एक्स एक्सिस के अलावा मूवमेंट। ये अब दो चीजों में डिवाइड होगी कि एक किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा किसी और चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। चलो, तो देयरफॉर ये जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगा फाइनली, अब यहां पे नहीं होगा, क्यों, अब तो वीआर को भी इंक्लूड कर लिया, तो यानी एडिशनल पुश आ गया और एडिशनल वेलोसिटी आ गया, तो वीआर भी अब आएगा इसमें, तो वी बी cos थीटा वीआर मिल के अब ये यहां जाएंगे, ये देखो अगर रिजल्टेंट हुआ अब ये यहां जाएगा। सो दिस इज द horizontal net movement, ठीक है, दिस इज द horizontal net movement that will happen। तो वो कितना हो जाएगा फिर, x will be equal to horizontal velocity into time, तो horizontal velocity क्या है ना, v cos थीटा प्लस वी आर a1, और टाइम कितना है ये वाला, यानी x कितना हो जाएगा b by vb sin थीटा into vb cos थीटा प्लस वी आर। ठीक है, देख लो, ठीक है, देख लो, यानी ये x आ गया। अब हम जानना चाहते हैं उत्कर्ष इज नाउ गेटिंग लिटिल इम्पेशेंट। अब चक्कर क्या ना, ये टॉपिक्स तो हमें कराना ही पड़ेगा सबके लिए, नॉट एवरीबॉडी हैज डन दैट। हम साइड में क्वेश्चन दे दो, फिर कॉमिक ही पढ़ रहा हूँ वरना टाइम का तो। आगे थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। चलो इसको भी एनालाइज करते हैं। देखो, सपोज अब मैं दो चीजें पूछूंगा, एंड दैट इज नंबर वन इज व्हाट इज द मिनिमम टाइम टेकन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स। तो देखो, मिनिमम टाइम कब होगा, है ना, मिनिमम टाइम तब होगा जब हम बोट को ऐसे डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर मैं कोई भी एंगल पे बोट को रखता हूं, इन दैट केस उसका एक पार्ट ही सिर्फ वाई एक्सिस को पार करने में हेल्प करता है। पर अगर मान लो मैं बोट को सीधा ऐसे डायरेक्ट करूंगा, इन दैट केस क्या होगा, पूरा जो उसका कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस को पार करने में लगता है। यानी अब लॉजिक समझो, मिनिमम टाइम कब होगा ना, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर थीटा 90 डिग्री होगा, इन दैट केस टीसी यानी टाइम ऑफ क्रॉसिंग का मिनिमम कितना आ जाएगा ना, बी बाय वीबी साइन 90 यानी ई अपॉन वीबी। देखो टीसी यानी टाइम ऑफ क्रॉसिंग का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, है ना, यानी तब ना जब साइन थीटा यानी थीटा 90 डिग्री, साइन थीटा 1 यानी बी बाय वीबी। ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटे, सर ये एक्स बी इंटू वी बी कॉस थीटा प्लस वी आर बाय वी वी साइन थीटा ये कैसे आया था? हाँ देखो, व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टोटल कितना हो गया ना, क्योंकि बोट थोड़ा सा एंगल पे है, तो बोट का एक पार्ट हॉरिजॉन्टल है, और अगर मान लो बोट नहीं भी होता तो वीआर तो एक्ट कर ही रहा है ना, तो वीआर भी है और बोट का कंपोनेंट भी है, तो मिला के कितना हो गया, वीआर प्लस वीबी कॉस थीटा। ये क्या है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रिवर एंड द पोर्ट। हो गया। अब इतने देर में वो वाई एक्सिस के अलोंग भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो कौन से कंपोनेंट से कर रहा है, वीबी साइन थीटा। तो यानी दोनों कंपोनेंट काम कर रहा है, एक उसको वाई एक्सिस के अलोंग ले जा रहा है, एक इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ले जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग कितना जाएगा, तो यानी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो ये आ गया इनटू टाइम। अब टाइम कहां से आएगा, टाइम होगा यहां से लेके उस पार जाने का टाइम, तो वो तो वाई वाला चीज है। तो लेट अस से अगर ब्रेड्थ ऑफ द रिवर अगर बी होता है और वाई कंपोनेंट हो जाता है वीबी साइन थीटा, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा, बी अपॉन वीबी साइन थीटा। इतने देर में क्या होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकल।
तो जितने देर टाइम ऑफ क्रॉसिंग यानी दूसरे तरफ पहुंचने में लगता है उतने देर में वो हॉरिजॉन्टली भी चलेगा, यानी d by vb sin थीटा टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया इनटू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या ना vb cos थीटा प्लस v, ये हो गया x का मूवमेंट जो कि होगा इस पर्टिकुलर केस। ठीक है, गेटिंग इट नाउ? सर ये x इज इक्वल टू b बाय tan phi आ गया ना? कौन से केस की बात कर रहे हो? सर x इज इक्वल टू b इंटू vb cos थीटा प्लस vr अपॉन vb sin थीटा। सर ये तो tan phi लिख सकते हैं ना इसको, 1 बाय tan phi। tan phi मतलब phi कहां से? phi मतलब vb cos थीटा और जो रिजल्टेंट है उसके बीच का एंगल। अच्छा, अगर वैसे लिखना चाहते हो ठीक है, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू कि अगर ये b हो गया और ये जो रिजल्टेंट हुआ और x के बीच का अगर एंगल phi बोलते हो यानी b by x हो जाएगा tan phi। ठीक है, वो दैट इज ओके। हमें बट क्योंकि हमने phi तक तभी पहुंचे ही नहीं, हमने तो phi का एनालिसिस ही नहीं किया, तो फिर वो एक खुद एक अननोन हो जाएगा, तो दैट्स नॉट सो मच रिक्वायर्ड। आई मीन सो मेन इशू इज अबाउट दिस वन। ठीक है ना? चलो, सो यानी टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम कितना आ गया ना, b by v। अब अगर मान लो टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम v by vb होता है तो कब थीटा 90 डिग्री, तो इन दैट केस x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखो x में cos 90 0 हो गया, sin 90 1 हो गया, है ना? यानी b by vb into vr, ये हो गया उस समय का x। कब का? जब तुम मिनिमम टाइम में ऑपोजिट एंड पहुंचना चाहते हो। तो अगर मिनिमम टाइम पे ऑपोजिट एंड पहुंचना चाहते हो तो दैट केस x बोलते क्या ना, यहां से लेके जितना देर दूर आगे जाके वो फाइनली दूसरे एंड पे पहुंचेंगे, उसका डिस्टेंस। ठीक है, चलो, सो दैट वाज अबाउट वन केस। बट कई बार पता है क्या होता है, कई बार पता है क्या होता है, हो सकता है कि मेरे टारगेट थोड़ा अलग, मेरा टारगेट है सपोज एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पहुंचना। तो ध्यान से सुनो, अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पहुंचना है इन दैट केस बोर्ड को ऐसे करके तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बोर्ड को ऐसे करोगे तो एक तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल उसको आगे ले जाएगा, और अगर तुमको एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पहुंचना है यानी x का वैल्यू तुमको 0 रखना है या नहीं? यानी अब दूसरा चीज, टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट बैंक, तो क्या हो जाएगा ना, x मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो x अगर 0 करोगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया। अब देखो इसमें b को तो 0 करोगे नहीं, vb sin थीटा इंफिनिटी हो नहीं सकता है, यानी इसी को 0 कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, vp cos थीटा प्लस br मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी cos थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ br बाई v। cos थीटा हो गया माइनस ऑफ br बाई vb। अब जरा देखो ये माइनस साइन आ रहा है, नाउ दैट इज सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि cos थीटा नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इट हैज टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल, और आई थिंक लॉजिकली भी होना चाहिए ना, क्योंकि जरा सोचो लॉजिकली क्यों, क्योंकि जरा सोचो इस केस में अगर मान लो ये रिवर है और अगर बोट को ऐसे रखोगे और रिवर ऐसे होगा, तब ना दोनों का रिजल्टेंट ऐसे हो सकता है, ये सीधा चला जाए। यानी ये जो ऑब्ट्यूज आंसर आ रहा है दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। अगर गलती से कोई मिस्टेक किया होता लेट्स से, और अगर आंसर पॉजिटिव आता यानी थीटा एक्यूट, पर थीटा एक्यूट में हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर मान लो एक्यूट एंगल होगा तो ये रिवर है, सॉरी हाँ ये रिवर है और ये बोट है, तब तो एक्यूट एंगल पे तो इधर ही जाएंगे ना, ऑपोजिट एंड पे तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर एंगल पे पहुंचेंगे, बट एक पर्टिकुलर एंगल पे पहुंचेंगे, और वो आंसर आ गया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ vr बाई vb। ठीक है, दैट्स द केस। ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ vr अपॉन vb। इस एंगल पे क्या होगा, ये जो cos थीटा दिख रहा है यहाँ पे थीटा, इस पे क्या होगा ना, बोट सीधा यहां पहुंच जाएंगे ऑपोजिट एंड। ये देखो
That is what is going to happen in this particular case. ठीक है? ऐसे केस में टाइम कितना लगेगा? टाइम तो वही VB sin थीटा है ना? यानी T will be equal to B by VB. अच्छा cos थीटा तो ये आ गया, तो sin थीटा भी आ जाएगा कैसे? 1 minus under root of VR by VB का होल स्क्वायर. ठीक है? या अब नेक्स्ट चीज सुनो, हमने अभी तक दो चीजें किया. एक है मिनिमम टाइम पे अगर पार करना है, इसके पहले हमने किया, और ये हो गया अगर मान लो मिनिमम फॉरवर्ड मूवमेंट करके. इनफैक्ट इसमें तो हमने x को इक्वल टू 0 पुट किया, बट कई बार देखना x इक्वल टू 0 हो नहीं पाता. ठीक है ना? कई बार देखना x इक्वल टू 0 नहीं हो पाता. ठीक है? अब मैं बताता हूं कैसे. ये जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ रहा है, जरा ध्यान से देखो. इस सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो VB निकल जाएगा. चलो मैं लिख के देता हूं. यानी इस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ गया इक्वल टू T अपॉन अंडर रूट ऑफ VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर. अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं. क्वेश्चन ये है कि सपोज बोट का वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड और रिवर का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड. तो क्या बता सकते हो कि एट व्हाट थीटा विल x be equal to 0? हाँ जी, आंसर करो. यानी क्वेश्चन समझो. बोट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, रिवर का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. थीटा क्या रखोगे सो दैट x का वैल्यू 0? हाँ जी. X क्या? x मींस द फॉरवर्ड मूवमेंट. 0 नहीं हो सकता. x का मतलब समझो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपोजिट पॉइंट है, और फाइनली बोट जहां पे जाता है वो होता है x. यानी x इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द बोट बाय द टाइम इट रीचेस द अपोजिट. तो x का डेफिनेशन. x का मतलब होता है ठीक है. Not possible. Not possible. till the boat reaches opposite end. That is what it is. Okay, मेरे पास कुछ आंसर्स तो आ चुके हैं. And that is Vansh has given not possible. ध्रुव ने भी दे दिया not possible. Lavanya says cannot be possible. ठीक है. Akshat says not possible. Ishita, everybody says not possible. Now why is it not possible? That is because अगर मान लो मैं इस फॉर्मूला को फॉलो करता हूं, क्योंकि यही फॉर्मूला है फॉर x इक्वल टू 0, तो cos थीटा माइनस VR बाय VB, तो VR 5 है और 4 है, यानी फिर cos थीटा आ जाता है -5/4. अब cos थीटा -5/4 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ द cos थीटा इज बाउंड -1 से +1. यानी ये चीज तो इस केस में पॉसिबल नहीं है. वेरी सिंपल. तो हम क्या करें? तो थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो आंसर इज नॉट पॉसिबल. यानी इस बार x इक्वल टू 0 कर ही नहीं पाओगे. चलो ठीक है, फाइन. Vansh has given the answer and that is to reach exactly opposite end VR has to be less than equal to P. ठीक है ना? अच्छा एक चीज बताओ, cos थीटा बिटवीन -1 एंड +1 होता है, तो क्या इस केस में VR इज इक्वल टू VB अलाउड है? क्योंकि देखो cos थीटा अगर मान लो -VR by VB, तो cos थीटा डिफाइंड होना चाहिए. तो cos थीटा डिफाइंड तो VR इज इक्वल टू VB पे भी होता है. तो क्या ये पॉसिबल होगा? ओके, आंसर इज उत्कर्ष नो, वंश नो. अच्छा इसमें दिक्कत क्या है? अविरल सेज नो. इसमें दिक्कत क्या है? सर नो बाय कंपोनेंट. वर्टिकल में होगा ही नहीं कुछ. यानी इस केस में दिक्कत क्या है कि थीटा इस केस में 180 डिग्री हो जाए. अब 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि बोट उधर जा रहा है, सॉरी रिवर इसको इधर ले जाना चाहता है, बोट उधर जा रहा है, तब ना 180 डिग्री. तो फिर वाई में तो कुछ बचा ही नहीं, तो लेके कौन जाएगा उसको? तो होगा यही कि वो यहीं पे रोइंग करता रहेगा, रोइंग करता जाएगा, है ना? ऐसे करके रोइंग करता जाएगा और बोट के खिलाफ, रिवर के खिलाफ. नहीं जाएगा कहीं, यहीं पे पड़ा रहेगा, है नहीं? दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यानी इवन इक्वल टू भी अलाउड नहीं है जबकि cos थीटा डिफाइंड. यानी कंक्लूजन ही आ रहा है कि ऐसे केस में अगर x इक्वल टू 0 चाहते हो, वैसे एक और इंटरप्रिटेशन भी है, एंड दैट इज कि अगर मान लो VB लेस देन या इक्वल टू VR होता है, तो देखो टाइम
इमेजिनरी हो जाएगा, और अगर इक्वल टू भी कर दोगे तो टाइम इनफाइनाइट होता है। यानी x इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन, एंड दैट इज VR मस्ट बी लेस देन VB। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, एक फाइनल क्वेश्चन इसमें अंदर दे देता हूं, दैट इज सपोज ये जो विड्थ है ये सपोज है 400 मीटर। ठीक है, ये जो विड्थ है ये सपोज 400 मीटर है, और मैंने क्या किया, बोट का स्पीड दे दिया 4 मीटर पर सेकेंड, रिवर का स्पीड दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतना तो पता चल गया कि x इक्वल टू 0 तो हम कर ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। बट मेरा क्वेश्चन कुछ और है, कैन यू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x? भाई कम से कम x। अच्छा बाय द वे x क्या है, अगर मान लो बोट यहां से स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से अगर बोट यहां से स्टार्ट कर रहा है तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ, तो फाइनली मान लो बोट यहां गया फाइनली, अब वो ऐसे रिजल्टेंट करके हो जैसे भी जाएंगे, दिस इज व्हाट इज x। यानी जहां पे स्टार्ट किया उसके ऑपोजिट एंड से लेके जहां पे फाइनली पहुंचता है, तो वो डिस्टेंस सपोज अगर मैं x बोलता हूं, यू टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इन दिस केस। ठीक है, गो अहेड। ठीक है, नो आंसर्स बहुत सारे आ गए, उत्कर्ष, वंश, अविरल, एंड द नो आंसर वाज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो अब मैंने दिया बोट का स्पीड लेस देन रिवर, यानी x इक्वल टू 0 का तो कोई चांस नहीं, इसलिए मैंने अब क्या पूछ लिया, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। चल गो अहेड। मैं काम करूंगा आज ना, मैं एक वेक्टर का असाइनमेंट दे दूंगा, बिकॉज़ व्हाट आई एम सीइंग इज दैट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। ओके, सम आंसर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग, तो लेट मी नाउ स्टार्ट एड्रेसिंग इट। ठीक है ना, देखो इशू इज दैट अगर मान लो मैं बोट को कुछ एक थीटा एंगल पे रखता हूं, पता नहीं क्या थीटा, एज आई नो दैट द क्रॉसिंग टाइम will be 400 by VB is 4, so 4 sin theta. यानी basically 100 by sin theta. ये हो गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग। कितनी देर में वो हॉरिजॉन्टली भी जाएंगे, तो कितना जाएंगे, है ना, कितना जाएंगे ना, जो वेलोसिटी होगा, है ना, तो वेलोसिटी कौन सा, VB cos थीटा प्लस VR, तो x हो जाएगा VB यानी 4 cos थीटा, ये देखो ना 4 cos थीटा प्लस VR which is 5। ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग which is 100 by sin theta, 100 by sin, ये हो गया B6, ये 100 आ गया इनटू 4 cos थीटा प्लस 5 by sin। अच्छा अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूं, अगर मैं इसको जनरलाइज करूंगा, ये बेसिकली आ जाएगा B by VB sin थीटा इनटू VB cos थीटा प्लस VR, जो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में याद है। अच्छा ये होता है इसका x, और मुझे इस बार मिनिमम करना है, यानी अब मैं लिखूंगा dx d थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो यानी p by vp इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, यानी माइनस vp sin थीटा इनटू डिनोमिनेटर, तो मैं vp को अलग कर दिया तो लाइक cos थीटा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर cos थीटा का, सॉरी sin, तो डिफरेंशिएट ऑफ द न्यूमरेटर यानी माइनस vp sin थीटा इनटू डिनोमिनेटर, माइनस न्यूमरेटर vp cos थीटा प्लस vr
इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, चलो वो तो ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी क्या निकल आ रहा है माइनस वीबी साइन स्क्वायर थीटा माइनस वीबी cos थीटा यानी माइनस वीबी cos स्क्वायर थीटा माइनस वीआर cos थीटा हैज टू बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर से तो कुछ होना नहीं है। ये तो हो गया as you can see very easily, यानी cos थीटा इज इक्वल टू अब आ गया माइनस ऑफ वीपी बाय वीआर। अब एक दूसरा चीज है, यानी मिनिमम तब होगा जब cos थीटा माइनस ऑफ वीबी बाय वीआर हो, ठीक है। तो वीबी बाय वीआर तो वेल डिफाइंड, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये अब तो 4/5 है ना। तो इससे क्या ना cos थीटा आ गया, अब cos थीटा माइनस वीबी बाय वीआर, इसको पुट कर देता हूं यहाँ पे, x का वैल्यू तो यही है ना। तो कितना आ जाएगा, अब मैं वो x कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये जो x, तो 100 इंटू 4 इंटू cos थीटा माइनस ऑफ वीबी बाय वीआर यानी माइनस ऑफ 4/5, यानी माइनस ऑफ 4/5 प्लस 5 बाय, अब अगर cos थीटा 4/5 होता है ना, cos थीटा इज लाइक माइनस 4/5, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 3/5 है ना, यानी इक्वल बाय 3/5, या ठीक है, यानी 100 इंटू माइनस 16 प्लस 25 बाय, यानी इक्वल टू 300, यानी जो मिनिमम डिस्टेंस होगा इस केस में, द मिनिमम डिस्टेंस दैट इट विल क्रॉस, ठीक है ना, इज 300 मीटर। यानी इस बार भी cos थीटा नेगेटिव है, यानी बोट इस बार भी ऐसे नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली इस बार भी हम बोट कुछ ऐसे रखेंगे, रिवर ऐसे होगा, लेकिन कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे पहुंचेंगे, ये हो जाएगा x मिनिमम। दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ x मिनिमम, ठीक है। ओके, 3-4 करेक्ट आंसर्स आए हैं। नाउ आर्यन हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर, उत्कर्ष हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर। थोड़ा सा पहले उत्कर्ष का आंसर गलत था, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक था शायद। इशिता थोड़ा सा ठीक कर लो बेटे। लावण्य एंड विश्वास हैज आल्सो गिवन द सेम करेक्ट आंसर। सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो थोड़ा सा ये वाला? देखो हमने क्या किया समझो जरा, हमने जनरल निकाल लिया कि भाई कितना होता है, ठीक है ना, तो उससे x तो आ गया, x तो हमने पहले भी निकाला हुआ है। अगर मान लो इस वैल्यूज को लेके करते हो तो ये आएगा, और अगर जनरलाइज करते हो तो ये आता है, ये तो पहले भी हमने किया। अब क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि x को मिनिमाइज करो, तो अब पता नहीं है कौन सा एंगल ऑफ बोट पे वो होगा, तो अब जब एंगल वेरिएबल है और तुमको मिनिमाइज करना, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, dx d थीटा इक्वल टू 0 कर दिया, एंड देन वी गो अहेड। सर अब वो डिफरेंशिएशन वाला रूल देख लो, तो डिफरेंशिएशन रूल लगा के cos थीटा आ रहा है माइनस वीबी बाय वीआर, इस बार देखो वीबी लेस देन वीआर है, तो इसलिए अब ये वैल्यू। हाँ कुछ पूछ रहे थे ना, VB इक्वल टू VR में अब इससे इस क्या आंसर होगा? हाँ देखो वीबी इज इक्वल टू वीआर अगर होगा तो ऑब्वियसली फिर वो वही चीज आ जाएगा ना कि -1 होगा। हाँ, लेकिन कुछ तो मिनिमम सेपरेशन होगा ना किसी एंगल पे, तो जब पहुंचने पे कि है कि पहुंचेगा। नहीं ऐसे पर उस केस में ये निकला ना कि निष्कर्ष के पहुंचेंगे ही नहीं। वो तो 180 डिग्री में ना, लेकिन किसी और एंगल पे, बाकी हर एक एंगल पे तो पहुंचेंगे, तो जिस एंगल पे पहुंचेंगे उसमें मिनिमम। हाँ वो वही तो है ये वाला, कि अगर मान लो इस केस में बोट का स्पीड, अगर देखो अगर बोट का स्पीड रिवर्स से ज्यादा होता है तब तो x को 0 भी कर सकते हो, ये हमने देखा। अगर बोट का स्पीड रिवर्स से कम होता है तो x को 0 तो कर ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि रिवर उसको आगे ज्यादा जल्दी ले जाएगा, जितना देर की वो पीछे ले जा सकता है अपने आप को। सो देयरफॉर उसको फॉरवर्ड तो जाना ही है, क्योंकि उसको टाइम ऑफ क्रॉसिंग में कुछ टाइम लगता है, इतने देर में फॉरवर्ड चला जाता है। तो समवेयर हियर द ओनली क्वेश्चन इज दैट, अब अगर मैं बोट को अलग अलग ओरिएंटेशन में रखूंगा विद इन द लिमिटेशन गिवन हियर कि बोट का स्पीड रिवर्स से कम है, तो अलग अलग x बनेगा। अब पॉइंट इज दैट कौन सा ऐसे एंगल होगा जिसमें x का वो जो वैल्यू है, मतलब
ऑपोजिट पॉइंट से x का वैल्यू वो मिनिमम हो, दैट वी हैव गॉट हियर, दैट एंगल इज दिस cos थीटा, ठीक है ना? ओके युग, हाँ युग तुम्हारा कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, बार बार इन एंड आउट हो रहे हो। बट मैं तो कह रहा था कि ना उसके लिए क्या आंसर होगा VP इक्वल टू VR के लिए? नहीं देखो वही तो मैं कर रहा हूं ना, अगर VP इज इक्वल टू VR है ना, तब तो cos थीटा -1 आ गया। वो तो इसमें ना वो तो 180 डिग्री में कुछ, बाकी अगर 90 डिग्री रखोगे तो पॉजिटिव जाएगा ही, लेकिन अब वो है कि मान लो 180 पे के अलावा बाकी किसी एंगल पे रख रहे हैं तो उसमें मिनिमम क्या होगा कि पहुंचना है मतलब बस उसी में तो मिनिमम हो रहा है ना ये। उस इस पे तो 180 है ना, लेकिन इस पे इस फॉर्मूले में रखोगे, ये फॉर्मूला ही उस में चलेगा नहीं ना। फॉर्मूले में हमने कुछ ऐसा करा होगा, कहीं ना कहीं डिवाइड करा होगा जो साइन थीटा समझे है। नहीं, समझे नहीं, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है वो एंगल जिसमें ये मिनिमम x पे रिवर को पार करेगा। तुम बोलोगे नहीं मैं इस एंगल पे तो नहीं रखूंगा, तो कुछ और एंगल पे रखूंगा, तो ऑब्वियसली फिर x ज्यादा होगा। और अगर इसी पे रखते हो और मान लो बाई चांस VB इक्वल टू VR है, तो इन दैट केस देखना x यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंचेंगे? इंफिनिटी टाइम। और अगर तुम 180 डिग्री कुछ भी रखोगे, जैसे मान लो VR इज इक्वल टू VB है, बट तुम ऐसे रखते हो, ये VR है ये VB है, तो आगे पहुंचेंगे, फिर तो कोई लिमिट नहीं है ना। फिर तो अगर ऐसे रखोगे तो कहीं और पहुंचेंगे, 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 x का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा। ये चीज यानी x को इस तरफ तो तुम कभी नहीं ले जा पाओगे अगर VB इज इक्वल टू VR है, लेकिन x को आगे तुम जितना मर्जी ले जा सकते, अब वो तुम्हारे थीटा के ऊपर। अगर तुम थीटा 180 डिग्री करते हो तो इन दैट केस थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, थियोरेटिकली तुम यहां पहुंचोगे, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो वो भी नहीं होगा, है ना? बट वही बात है कि उसके लिए क्या टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम। इसके अलावा कुछ भी एंगल रखते हो 180 के अलावा, 179 रखो, 178, 176, 170, 160, कुछ भी रखो, तो धीरे धीरे तुम बोर्ड को ऐसे की जगह ऐसे कर रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो, तो नहीं क्या होगा, वो सीधे पहुंचते जाएंगे, फिर तो देयर इज नो लिमिट टू एक्स। एक्स तो जितना मर्जी कर सकते। तुम एक काम करो ना, थीटा को 1 डिग्री के आसपास रख लो, बिल्कुल यहाँ पे, तो वो तो पता नहीं कई हजार किलोमीटर ले जाएंगे शायद, मतलब कई किलोमीटर ले जाएंगे। और अगर 0.001 डिग्री कर दो तो अब तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो लाइक एक्स कैन बी इनफाइनाइट डिपेंडिंग ऑन द थीटा यू चूज, ठीक है ना? देखो ये बड़ा स्पेसिफिक है, ये तो VB लेस देन VR थी, VB इज इक्वल टू VR का तो हमने केस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना? और उसमें अगर VB इज इक्वल टू VR में अगर तुम थीटा 180 डिग्री नहीं रखते हो, इन दैट केस तो एनी एक्स इज पॉसिबल, देयर इज नो लिमिट टू एक्स, पर हाँ पॉजिटिव हो, ये बात जरूर, ठीक है ना? चलो, सो दैट वाज अबाउट योर डिस्कशन ऑन वेक्टर्स एडिशन। इसके अलावा एक और आता है, दैट इज डिस्कशन ऑन वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे यूज करते हैं वो भी एक एग्जांपल देखा जाए। जैसे जनरली हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में यूज करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं जा रहा हूं मान लो 4 मीटर पर सेकंड से, और मेरे बगल में भी कोई जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो क्या होगा? दोनों एक साथ चलेंगे। तो अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो इसका यानी मैं और वो जो है बिल्कुल बगल बगल में, तो अगर मान लो मेरे से कोई पूछते हैं तो बताओ जरा ये कितना फास्ट जा रहा है आपके हिसाब से, तो मैं बोला फास्ट कहाँ जा रही है, तो मेरे साथ ही है, यानी मेरे हिसाब से एक्चुअली वो रेस्ट पे हो जाता, जबकि एक्चुअली तो मूविंग है ना। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड रिलेटिव मोशन, यानी एक मूविंग ऑब्जर्वर के हिसाब से एक दूसरा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट, स्लो, आगे पीछे, दाएं बाएं जा रहा है। सो दैट एनालिसिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। अच्छा, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाता है तो थोड़ा सा समझना आसान होता है। तो उसको यूज करके हमने जो कंसेप्ट डेवलप किया वो है कि कोई भी रिलेटिव क्वांटिटी जैसे v रिलेटिव कैसे निकालोगे? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो मूव कर रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, यानी माइनस v ऑब्जर्वर। तो वेलोसिटी रिलेटिव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये हो गया v रिलेटिव। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखूंगा। अब एक एनालिसिस किया जाए, एंड दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं रेन अम्ब्रेला क्वेश्चंस। अब जरा सोचो, सपोज बारिश वर्टिकली गिर रहा है, जरा लॉजिकली समझो, अगर बारिश वर्टिकली गिर रहा है और अगर मैं भी स्टेशनरी हूं,
So at what angle should I keep my umbrella for better protection? I should keep my umbrella vertical. So simple. यानी अगर बारिश वर्टिकली गिर रहा है तो मुझे भी अम्ब्रेला वर्टिकल रखना चाहिए, so that I am protecting myself best. But the moment I start running in the rain, तब सिचुएशन बदल जाता है। अब क्यों बदलता है? नहीं, जरा सोचो। सपोज अगर मैं यहाँ पे हूं और अगर मैं दौड़ रहा हूं तो यहाँ पे एक रेन ड्रॉप है, यहाँ पे एक रेन ड्रॉप, तो मुझे तो इस रेन ड्रॉप से कोई लेना देना ही नहीं। क्यों? कि जब तक ये नीचे आएंगे तब तक मैं आगे जा चुका, तो मुझे शायद कोई इस रेन ड्रॉप से मतलब है। क्यों? क्योंकि जब तक ये नीचे आता है तब तक शायद मैं इसके नीचे आता हूं। तो यानी मुझे इस रेन ड्रॉप से कोई मतलब नहीं है जो कि इस वक्त मेरे ठीक सर के ऊपर, मुझे उस रेन ड्रॉप से मतलब है क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे जाऊंगा तब तक ये यहाँ आ जाएगा। यानी ये थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे, मैं यहाँ पे जाऊंगा। यानी अभी मैं इनिशियली उसको यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अभी इनिशियली मैं उसको वहां देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं यहाँ पे आ गया, वो नीचे आ गया, अभी मैं उसको वहां देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे होता, अभी वहां देख रहा हूँ। यानी अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको तो हो क्या रहा है। आई एम सीइंग द रेन ड्रॉप लाइक दिस एंड अप्रोचिंग मी लाइक दिस। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ यू माइट से रेन ड्रॉप तो वर्टिकली गिर रहा है, आप तो एंगल पे दिखा रहे हो। नहीं, यही तो होता है। अगर मान लो मेरे बगल में अगर मान लो 4 मीटर पर सेकंड वाला जा रहा है और मैं भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, तो मुझे वो रेस्ट दिख रहा है, तो क्या रेस्ट पे था? वो मूविंग है ना, लेकिन मेरे हिसाब से रेस्ट पे, क्योंकि मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। द रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली, बट फॉर मी द रेन ड्रॉप इज एक्चुअली अप्रोचिंग मी लाइक दिस एंड फाइनली हिट्स मी हियर। दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन। यानी मैं जा रहा हूं हॉरिजॉन्टल, रेन वर्टिकल, लेकिन नजर ऐसे आ, तो ये होता वी रिलेटिव, यानी वी ऑब्जेक्ट माइनस वी ऑब्जर्वर। अब इसके ऑब्जेक्ट कौन है? रेन। ऑब्जर्वर कौन है? बंदा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? ये वी रेन है, सपोज ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूं वी माइनस ऑब्जर्वर। क्यों? माइनस वी ऑब्जर्वर, तो माइनस वी ऑब्जर्वर ही हो गया। लेकिन सर इसमें ये है कि हम अपना आदमी को पॉइंट साइज मानते हैं, वरना कोई तरीका नहीं है। आदमी को पॉइंट साइज ना मान के आइस को पॉइंट साइज मान, आइस से ही देख रहे हैं, तो आइस को ही मान लो ऑब्जेक्ट है ना। दैट इज अनदर थिंग। आदमी अगर पॉइंट साइज नहीं है तो कोई तरीका नहीं है बचने का। देखो मैं बताता हूँ, ये सब जो एनालिसिस होता है ये सारा पॉइंट को लेके ही किया जाता है ना। तो वो जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये हम लोग बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो एक पॉइंट मान के भी करोगे तो बेस्ट प्रोटेक्शन फिर भी उसी एंगल की है, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया वी रिलेटिव फाइनली। दिस इज व्हाट इज योर वी रिलेटिव। यही वी रिलेटिव देखो, वो जो मैं कह रहा था कि देखो मुझे ऐसे नजर आते हुए दिख रहा है, क्योंकि देखो मुझे पहले रेन ड्रॉप यहां नजर आया, फिर देखो इसी एंगल पे डिस्टेंस कम हुआ, फिर देखो इसी एंगल पे डिस्टेंस कम हुआ, फिर इसी एंगल पे डिस्टेंस कम हुआ, यानी मुझे डिस्टेंस ये वाले कम होते हुए दिख रहे हैं ऐसे ऐसे। तो यही वो सेंस है इसका और इसका कनेक्शन, कि रिलेटिव वेलोसिटी एंगल पे कैसे हो गया जबकि एक सीधा और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो ये होता है इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा अब देखो, ऑब्वियसली अगर मान लो मुझे कोई चीज ऐसे आते हुए दिखेगा तो मैं अम्ब्रेला भी ऐसे रखूं, यानी अम्ब्रेला का जो एंगल है वो भी रिलेटिव मोशन के लाइन के अलॉन्ग होगा। यानी फाइनली ये जो अम्ब्रेला होगा, तो द अम्ब्रेला विल बी ओरिएंटेड along the line of relative motion। और रिलेटिव मोशन कैसे निकलेगा ना, उसका जनरलाइज्ड है वी ऑब्जेक्ट माइनस वी ऑब्जर्वर। ये होता है इसका स्पेसिफिक, ठीक है ना। अब देखिए, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, तो उसको सॉल्व करो, आई थिंक थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन इज दैट सपोज रेन इज फॉलिंग लाइक दिस, और कुछ एंगल दे रखा है, मान लो 37 डिग्री, और ये है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन इज सो ये डॉटेड वर्टिकल है ना? हाँ, ये डॉटेड लाइन वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन है, उसके साथ 37। तो ये रेन कितने स्पीड से गिर रहा है ना, 37 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द बैक वर्टिकल, यानी रेन अब खुद एंगल पे भी आ रहा है। यानी अगर मैं स्टेशनरी रहूंगा तब तो वैसे भी अम्ब्रेला थोड़ा सा तिरछा रखना चाहिए, क्योंकि इस बार रेन वर्टिकल नहीं आ रहा है, एंगल पे आ रहा है। और अगर मैं दौड़ूंगा तो ऑब्वियसली वो फिर एंगल भी बदलेगा, है ना। सो माय क्वेश्चन नाउ इज फाइंड
velocity of person required so that umbrella, अच्छा अम्ब्रेला एक एक्सेप्शनल केस एक और तरीके से है, एंड दैट इज कि अम्ब्रेला का जो एंगल होता है ना, देखो वेक्टर का एंगल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, एक्स एक्सिस के साथ बता, बट देखो अम्ब्रेला ना नेचुरली वर्टिकल होता है, यानी वाई एक्सिस के अलावा, इसलिए अम्ब्रेला वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो एंगल होता है वो हम लोग वाई एक्सिस के साथ बताते हैं, समझो ना। तो देयरफॉर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड सो दैट अम्ब्रेला इज ओरिएंटेड एट 53 डिग्री। सर वैसे ये लिखा हुआ होगा या फिर ना, मतलब क्वेश्चंस में लिखा होगा? दिया होगा ठीक ठीक है ना। जैसे ये मैंने क्या लिखा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड सो दैट द अम्ब्रेला इज ओरिएंटेड एट 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कौन सी साइड? नहीं ऐसे कुछ नहीं बोला, फर्क पड़ेगा ना, लेकिन बिल्कुल पड़ेगा, तो सब सोच समझ के आंसर दो। तो दो आंसर दे। हाँ हाँ बिल्कुल। Okay, Vishwas has already given an answer and that is 6 meter per second. ठीक है, देखता हूं। So I have got only one answer till now, and that is from Vishwas. That's a quick answer, in fact, Vishwas ke, and that is 6 meter per second. और कोई? चलो, now let's start. Okay, Arhan has also given an answer, and उसमें भी कुछ साइन का गड़बड़ लग रहा है मुझे। युग ने भी आंसर दिया है, आंसर थोड़ा अलग है। युग आंसर एक बार चेक करो। चलो, let's start. मैं ही मान के चल रहा हूँ कि let us say this person is basically running like this, है ना, और ऐसे करके कोई अम्ब्रेला होल्ड कर रहा हूँ, difficult to draw like this at some angle, I don't know. वो एंगल जो अम्ब्रेला का वो तो ऑब्वियसली फिर ऐसे होगा, क्यों, है ना, तो ये एंगल इस बार ऐसे like this, as per this. So he has to somehow run in a way so that the umbrella is this time like at an angle as per this, ठीक है ना, जैसे मैंने ये ड्रा। उसके लिए वेलोसिटी क्या है ना, मैंने सपोज इसको मान लिया vx या vp, ठीक है, तो या v ले लो, चलो फिलहाल। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना होगा, तो ये 5 है ना, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, ये 37 डिग्री, तो ऑब्वियसली फिर ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा एज पर द कंपोनेंट है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप, सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन यानी ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा पता नहीं, तो v लिया मैंने, ये हो गया vi कैप। नाउ you know what, there are two possibilities. Possibility number 1 is that कि ये एंगल 53 डिग्री इधर हो, ठीक है, ये एंगल 53 डिग्री इधर, और पॉसिबिलिटी 2 है कि 53 डिग्री इधर हो, यानी ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर। अब अगर मैं v रिलेटिव निकालता हूं, यानी क्या आ जाएगा, 3 माइनस वी आई कैप, 3 माइनस वी आई कैप माइनस 4j कैप, ठीक है, ये हो गया v रिलेटिव, यानी 3 माइनस वी आई कैप माइनस 4j। अच्छा, ये जो फॉर्मेट है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, इफ दिस इज पॉजिटिव,
अब तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर हो गया। बट अगर मान लो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर चाहिए तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए मैं एक और एग्जांपल लेऊंगा, इसी रिलेटिव को मैं लिखने वाला हूं, माइनस ऑफ v माइनस 3i कैप माइनस 4j। इसी से मुझे दो आंसर्स मिलेंगे, ये हो गया केस 2, ये हो गया केस 1। तो ये हो गया वो केस 1 और ये हो गया वो केस 2। ठीक है, चलो अब केस 1 के हिसाब से क्या होगा, 3 माइनस बी आई कैप और ये माइनस 4j कैप, और ये एंगल 53 डिग्री होना चाहिए, ये हो गया 53 डिग्री। तो ये तो 3 माइनस बी है, ठीक है, और ये कितना हो गया, 4 ये हो गया 4, तो 53 डिग्री, तो tan 53 डिग्री विल बी 3 माइनस बी, ठीक है ना, बाय 4। और tan 53 कितना होता है, 4/3, है ना, तो यानी 9 minus 3v is equal to 16. So therefore, v is equal to minus of 7/3. यानी हमने ऐसे लिया है, बट ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो, क्वाइट पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्चुअली हो गया केस 1, ये केस 1 का सोल्यूशन। और केस 2 में क्या ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये माइनस और ये भी माइनस। अब मैं इसको लिखूंगा v माइनस 3 और ये हो गया 4 और ये एंगल हो गया 53 डिग्री। तो v माइनस 3 by 4 इज इक्वल टू tan 53 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4/3, यानी v इज इक्वल टू आ जाएगा 25/3। तो ये दो आंसर्स पॉसिबल है, एक है 25/3 इस तरफ जाए या तो 7/3 इधर जाए, और दोनों केस में 53 डिग्री होगा, एक होगा 53 डिग्री इस तरफ और एक होगा 53 डिग्री इस तरफ। अच्छा, ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी कुछ बोला नहीं है कि कौन सी साइड में होना चाहिए, ओरिएंटेड ओनली 53 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ठीक है ना, तो वो चीज बोला नहीं गया, इसलिए हमें दोनों केस को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों केस के हिसाब से आंसर आ रहा है 25/3 एंड माइनस ऑफ 7/3। कुछ आंसर्स आए हैं, अरहान ने आंसर दिए 7/3, आई थिंक उसको माइनस 7/3 कर लो। विश्वास इज गिवन 25/3, दैट्स राइट। युग 16/3 दिए हैं, युग ठीक कर लो, देखो कहां पे मिस्टेक हुआ था। आई थिंक नवांश हैज गिवन वन आंसर करेक्ट, दूसरा भी 7/3 तो दे रहे हो, बट उसको माइनस करना था, तो आई डोंट नो माइनस गलती से लिखा है या आई डोंट, ठीक है ना। अच्छा, विश्वास के पहले वाला आंसर सही नहीं था, अब बाद में सही है, ठीक है। यानी इस केस में या इस क्वेश्चन में जो मेन चीज था वो समझना था इज दैट कि हमें दोनों पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करके तब जाके आंसर, राइट, ओके। So that was about your an example of vector subtraction. इसी अम्ब्रेला को हम लोग थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब हम लोग मोशन वाला चैप्टर करेंगे तो इस अम्ब्रेला टाइप के क्वेश्चंस को और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है ना। कुछ क्रिटिकल केसेस और भी है इसके अंदर जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मान लो अम्ब्रेला तो हम लोगों को आदत है ऐसे रखने का, क्या कैसे ऐसे भी कोई पॉसिबिलिटी कि अम्ब्रेला में नीचे रखना चाहिए, है ना, तो इंटरेस्टिंगली ऐसे भी होता है, तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन में और डिटेल्स तो वी विल टेक देम, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर एग्जांपल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम चलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हैज बीन डिफाइंड टू टाइप्स, वन व्हिच गिव्स अस अ स्केलर आंसर, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट, उसका सिंबॉलिक डॉट यूज होता है तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एंड द अदर व्हिच गिव्स अ वेक्टर आंसर, इट्स कॉल्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट, और उसका सिंबल के हिसाब से क्रॉस। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट्स हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी, इसको लिखते हैं ए क्रॉस, इसलिए नाम डॉट और क्रॉस। चलिए स्टार्ट विद द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया गया, ए डॉट बी
has been defined as magnitude of A into magnitude of B into cos theta. इसके मतलब A डॉट B का जो साइन होगा वो अकेला cos थीटा से आएगा, मॉड A मॉड B तो मैग्नीट्यूड से, तो वहां से साइन आएगा, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्वियसली बिटवीन 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्योंकि जो थीटा होता है ना वो होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो इफ A is the vector, B is the vector, then theta is the angle between the two vectors। तो 180 से ऊपर तो होगा नहीं, 180 से अगर ऊपर होगा तो हम दूसरी तरफ से एंगल ले लेंगे कि भाई 180 से नीचे आ जाए। तो if it is that is the case, then A dot B is negative, and obviously theta 90 degree, so it will be 0, and theta less than 90 degree greater than equal to 0, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो देखो A dot B में साइन भी आएगा और वो थीटा पे डिपेंडेंट, राइट? अगर मैं ऐसे करता हूं तो इन दैट केस अब इसको कार्टेशियन पे ले जाते हैं। तो कार्टेशियन पे क्या है, अगर मैं I डॉट I है ना इज इक्वल टू J डॉट J इज इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू क्या है, 1 into cos 0, यानी क्या होता है 1। फिर क्या, I डॉट J, अब I और J क्या होता है 90 डिग्री पे, यानी I डॉट, यानी जो मिक्सचर वाले सारे जीरो, I डॉट J इज इक्वल टू I डॉट K इज इक्वल टू J डॉट है ना K and so on। So like all the mixed ones will be all zero, why? Because theta will be equal to 90 degree। और ये क्यों 1 होगा, because theta is equal to 0 degree। अब इसका फायदा क्या होगा ना, अगर मान लो मुझे A वेक्टर डॉट B वेक्टर निकालना है तो बड़ा आसान टास्क हो जाएगा। कैसे, अगर मैं लिखता हूँ A को एज AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZ की, और B वेक्टर को लिखता हूँ एज BXI कैप प्लस BYJ कैप प्लस BZ की, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा, है ना? तो फिर ये होगा कि A डॉट B विल बी, अब देखो इसमें सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, AX BX I डॉट I, AX BY I डॉट J, तो I डॉट J वगैरह सब तो जीरो होना है, यानी जितने भी वर्टिकल छोड़ के डायगोनल टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, एक्चुअली हमें बहुत सारे होंगे, क्योंकि इसके साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको करेंगे, इसके साथ इसको करेंगे, फिर इसके साथ इसको करेंगे, इसके साथ इसको करेंगे, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको इसको इसको, यानी टोटल 9 टर्म्स आएंगे, 3 into 3 9 टर्म्स आएंगे। आउट ऑफ दैट वो I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K छोड़ के बाकी सब तो जीरो आएंगे। तो देयरफॉर I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K ये रह जाएगा, बाकी सब जीरो, यानी कितना हो जाएगा ना, A डॉट B इज इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। ये देखो ये हो गया A डॉट B। ठीक है, सो A डॉट B विल बी इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। और एक चीज है, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई आई कैप जे कैप की कैप मत लगा देना, क्यों? वैसे मैंने पहले बोला कि इसका आंसर वेक्टर आएंगे। ओके, चलो, सो दैट वाज अबाउट योर डॉट प्रोडक्ट। दिस इज इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ये सारा ज्योमेट्रिकल था, और अगर उसी को यूज करके अगर हम कार्टेशियन में करते हैं तो ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। तो डॉट प्रोडक्ट तो है बहुत आसान, है ना? डॉट प्रोडक्ट यूज क्या है ना, क्लास 11th में 2-3-4 जगह पे डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, जिसमें से एक तो वर्क डन डिफाइंड है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट के बेस पे है। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो ये दो मेन चीज है जो कि हम लोग 11th में यूज करेंगे एज फार एज डॉट प्रोडक्ट इज कंसर्न। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है ना, एंड दैट इज सपोज फोर्स इज इक्वल टू 2i cap plus 4j cap plus 7k, and the displacement vector is minus I cap plus 3j cap plus 2k।
ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये सपोज ऐसे एक मास पे लगाया गया जो कि सपोज 4 kg और इसका इनिशियल स्पीड दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फाइनल स्पीड, फाइंड फाइनल स्पीड, ठीक है। देख लो is that we are supposed to use work energy theorem, है ना। तो work energy theorem is what we are supposed to use. तो work energy theorem क्या कहता है? The total work done is equal to change in kinetic energy. Simple. तो total work done is equal to change in kinetic energy. Work done कितना होगा? The force dot displacement, यानी 2 into -1 -2 plus 4 into 3 12 plus 7 into 2 14. So this becomes the total work done. यानी W आ गया, ठीक है। तो 14 plus 12 26 minus 2 that is equal to 24. So 24 joule in this case is the work done. और वो होगा change in kinetic energy. So therefore I'm going to write delta KE as half m into v square minus u square, and that is equal to 24. I think 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 से हो जाएगा 12, यानी v square is equal to 48, यानी v is equal to under root of 40, a little less than 7m. सर Less than 7. सर 4 will be the exact answer. अब बेटे बोलो। मैंने एक दूसरे तरीके से करा था, उसमें जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए √69 आया, तो एक्सेलरेशन निकाला √69/4, अब फिर ना वो तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s वो लगाया। नहीं तो फिर उसमें सर मैंने भी ऐसे ही करा। नहीं इसमें ना पता क्या है, कौन बोल रहे हो? युगदेव चौहान, जो पहले बोला, मतलब बाद में। नहीं अभी देखो इसमें दिक्कत पता क्या है कि इस बार ध्यान से देखो कि फोर्स अलग डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन, है ना। तो देयरफॉर ओके समझा, है ना, तो देयरफॉर ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो, ठीक है ना। इसलिए इसमें वर्क एनर्जी थ्योरी नहीं यूज करेंगे, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि हमें फोर्स दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट अलग दिया गया है ना, अलग डायरेक्शन में दिया गया इनफैक्ट। तो देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम ओनली, एंड दैट्स गोइंग टू गिव अस एन आंसर ऑफ v is equal to under root of 48 एक्चुअली। तो स्लाइटली अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट, मतलब 7 से थोड़ा कम हो, है ना, लिटिल लेस देन 7। तो 49 होता तो 7 होता, 48 है मतलब 6 पॉइंट कुछ 893 जो भी आएगा, आई थिंक 8 या 9 के आसपास आएगा, है ना। I mean 4√3 to be precise, that's the best answer, 4√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा जहां तक वो जो इक्वेशंस की बात कर रहे थे ना, फोर्स और इक्वल टू मास एंड ऑल, उसमें दिक्कत क्या है ना कि इस बार डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इसमें क्या है ना, इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी, अब पता नहीं इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है ना। तो देयरफॉर मान लो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे कुछ है और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यानी शायद ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया u वेक्टर, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, शायद फोर्स ऐसे लगाया होगा, तो ये एक्चुअली पार्टिकल को फोर्स ऐसे लगा रहे हो, वेलोसिटी ऐसे है, तो शायद ऐसे कुछ करके गया हो यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। तो इसलिए मोर कॉम्प्लेक्स है, यानी वो जो डायरेक्ट होता है ना, जैसे F इक्वल टू ma करके a आ गया, फिर b इक्वल टू u प्लस at करके b आ गया, वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि या तो फिर मुझे u वेक्टर के बारे में मालूम हो पहले से, u का लेकिन वेक्टर नहीं मालूम है, सिर्फ स्पीड मालूम। तो देयरफॉर देयर इज अ हिंड्रेंस इन दिस क्वेश्चन, एंड वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाले अप्रोच से इस बार थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो यानी आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो था जस्ट इनिशिएशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ओके। एक क्वेश्चन में भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, या चलो छोड़ो आज तो टाइम नहीं, अगले दिन करेंगे, ठीक है ना।
So like next class we are going to continue with the discussion on this and introduce cross product also. अगले class में जो है ना हम लोग cross product करेंगे, तो that way we will be ending the discussion of vectors and then move on to the next, and that is kinematics of 1D. ठीक है ना, पहले 1D करेंगे और उसके बाद obviously फिर हम लोग 2D पे भी जाएंगे. ठीक है ना, चलो that's it what we have in store for you as far as today is concerned. अगले क्लास में वेक्टर खत्म हो जाएगा, बाद में एक असाइनमेंट दे दूंगा वेक्टर्स के ऊपर और उसको जो है सॉल्व करो और फिर उसको हम लोग मंडे डिस्कस करें. ठीक है, उसमें वेक्टर्स के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे. ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड एंजॉय अ नाइस वीकेंड आल्सो. सर हाँ जी बेटा. क्या बोल रहा हूँ, मतलब ना